اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو چاند کے دو ٹکڑے ہونے پر کی جانے والی امریکی اور یورپین سائنسدانوں کی تحقیق کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان امریکیوں اور یورپین کو اس کام پر لگایا کہ وہ کھربوں ڈالر لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے اور قرآن کی بات کو سچ ثابت کریں۔ اپولو 10 اور 11 کے ذریعے ناسا نے چاند کی جو تصویر لی ہے، اس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ زمانہ ماضی میں چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ یہ تصویر ناسا کی سرکاری ویب سائٹ پر موجود ہے اور تاحال تحقیق کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ناسا ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے۔ اس تصویر میں راکی بیٹ کے مقام پر چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا نظر آتا ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں مصر کے ماہر ارضیات ڈاکٹر زغلول نجار سے میزبان نے اس آیات کریمہ کے متعلق پوچھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر۔ ڈاکٹر زغلول نجار کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں ماہر ارضیات کے پروفیسر ہیں۔ قرآن مجید میں سائنسی حقائق کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں اور مصر کی سپریم کونسل آف اسلامی امور کی کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ انہوں نے میزبان سے کہا کہ اس آیات کریمہ کی وضاحت کے لیے میرے پاس ایک واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے اس واقعے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ میں برطانیہ کے مغرب میں واقع کارڈف یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہا تھا، جس کو سننے کے لیے مسلم اور غیر مسلم طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ قرآن میں بیان کردہ سائنسی حقائق پر جامع انداز میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک نو مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور مجھے اسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سر کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور فرمایا ہے؟ کیا یہ قرآن میں بیان کردہ ایک سائنسی حقیقت نہیں ہے؟ ڈاکٹر زغلول نجار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، کیونکہ سائنس کی دریافت کردہ حیران کن اشیاء یا واقعات کی تشریح سائنس کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے، مگر معجزہ ایک مافوق الفطرت شے ہے جس کو ہم سائنسی اصولوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا ایک معجزہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے لیے بطور دلیل دکھایا۔ حقیقی معجزات ان لوگوں کے لیے قطعی طور پر سچائی کی دلیل ہوتے ہیں جو ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم اس کو اس لیے معجزہ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اگر یہ ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہ ہوتا تو ہم اس زمانے کے لوگ اس کو معجزہ تسلیم نہ کرتے۔ علاوہ ازیں ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ حدیث کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ناممکن کام کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس چاند کے دو ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہو گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ کفار مکہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ ابن ابی کبشہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو ہے، معاذ اللہ۔
कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर होता है, इसका असर सारी दुनिया पर तो नहीं हो सकता। चुनाचा उन्होंने तय किया कि अब जो लोग सफर से वापस आएंगे इनसे पूछो कि क्या उन्होंने इस रात चांद को 2 टुकड़े होते देखा। चुनाचा जब वो लोग आए और उनसे पूछा, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि हाँ, फलां शब को हमने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। कुफार के मजमे ने यह तय किया था कि अगर बाहर के लोग आकर यही कहें तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई में कोई शक नहीं है। अब जो बाहर से आया, जब कभी आया, जिस तरफ से आया, हर एक ने इसकी शहादत दी कि हमने अपनी आंखों से देखा है। इस शहादत के बावजूद कुछ लोगों ने इस मौजज़े का यकीन कर लिया, मगर कुफार की अक्सरियत फिर भी इनकार पर अड़ी रही। इसी दौरान एक बरतानवी मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और अपना तारफ कराते हुए कहा कि मेरा नाम दाऊद मूसा पैटकाक है, मैं इस्लामी पार्टी बरतानिया का सदर हूँ। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला कि सर, अगर आप इजाजत दें तो इस मौजू के मुतालिक मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, तुम बात कर सकते हो। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की तहकीक कर रहा था, एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कुरान शरीफ की इंग्लिश तफसीर पेश की। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे घर ले आया। घर आकर जब मैंने कुरान को खोला तो सबसे पहले मेरी नज़र जिस सफ़े पर पड़ी वो यही सूरह कमर की इब्तदाई आयात थी। इन आयात का तर्जुमा और तफसीर पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से कहा कि क्या इस बात में कोई मंतक है कि क्या यह मुमकिन है कि चांद 2 टुकड़े हों और फिर आपस में दोबारा जुड़ जाएं? वो कौन सी ताकत थी कि जिसने ऐसा किया? इन आयात करीमा ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं कुरान का मुताला बराबर जारी रखूं। फिर कुछ अरसे के बाद मैं अपने घरेलू कामों में मसरूफ हो गया, मगर मेरे अंदर सच्चाई को जानने की तड़प का अल्लाह ताला को खूब इल्म था। यही वजह है कि खुदा का करना एक दिन ऐसा हुआ कि मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था। टीवी पर एक बाहिमी मुज़ाकरे का प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें एक मेजबान के साथ 3 अमरीकी माहिरीन फल्कियात बैठे हुए थे। टीवी शो का मेजबान साइंसदानों पर इल्जामात लगा रहा था कि इस वक्त जब जमीन पर भूख, अफलास, बीमारी और जहालत ने डेरे डाले हुए, आप लोग बेमकसद खला में दौरे करते फिर रहे हैं। जितना रुपया आप इन कामों पर खर्च कर रहे हैं वो अगर जमीन पर खर्च किया जाए तो कुछ अच्छे मंसूबे बनाकर लोगों की हालत को बेहतर बनाया जा सकता है। बहस में हिस्सा लेते हुए और अपने काम का दिफा करते हुए इन तीनों साइंसदानों का कहना था कि यह खलाई टेक्नोलॉजी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों, अद्वियात, सनत और ज़राअत को वसी पैमाने पर तरक्की देने में इस्तेमाल होती है। उन्होंने कहा कि हम सरमाया को ज़ाया नहीं कर रहे, बल्कि इससे इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने में मदद मिल रही है। जब उन्होंने बताया कि चांद के सफर पर आने जाने के इंतजामात पर $1 खरब खर्च आता है, तो टीवी मेजबान ने चीखते हुए कहा कि ये कैसा फजूलपन है। एक अमरीकी झंडे को चांद पर लगाने के लिए $1 खरब खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है। साइंसदानों ने जवाबन कहा कि नहीं, हम चांद पर इसलिए नहीं गए कि हम वहां झंडा गाड़ सकें, बल्कि हमारा मकसद चांद की बनावट का जायजा लेना था। दरअसल हमने चांद पर एक ऐसी दरियाफ्त की है जिसका लोगों को यकीन दिलाने के लिए हमें इससे दुगनी रकम भी खर्च करना पड़ सकती है, मगर ताहाल लोग इस बात को ना मानते हैं और ना कभी मानेंगे। मेजबान ने पूछा कि वो दरियाफ्त क्या है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि एक दिन चांद के 2 टुकड़े हुए थे और फिर ये दोबारा आपस में मिल गए थे। मेजबान ने पूछा कि आपने ये चीज किस तरह महसूस की। उन्होंने कहा कि हमने तब्दील शुदा चट्टानों की एक ऐसी पट्टी वहां देखी है जिसने चांद को उसकी सतह से मरकज तक और फिर मरकज से उसकी दूसरी सतह तक काटा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने इस बात का तज़किरा अर्जियाती माहिरीन से भी किया है। इनकी राय के मुताबिक ऐसा हरगज उस वक्त तक नहीं हो सकता कि
किसी दिन चांद के 2 टुकड़े हुए हों और फिर दोबारा आपस में जुड़ भी गए हों। बरतानवी नौ मुस्लिम नौजवान ने बताया कि जब मैंने ये गुफ्तगू सुनी तो अपनी कुर्सी पर उछल पड़ा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला कि अल्लाह ने अमरीकियों को इस काम के लिए तैयार किया कि वो खरबों डॉलर लगाकर मुसलमानों के नबी के मौजज़े को साबित करें। वो मौजज़ा कि जिसका ज़हूर आज से 1400 साल कबल मुसलमानों के पैगंबर के हाथों हुआ। मैंने सोचा कि इस मजहब को जरूर सच्चा होना चाहिए। मैंने कुरान को खोला और सूरह कमर को फिर पढ़ा। दरहकीकत यही सूरह मेरे इस्लाम में दाखिले का सबब बनी। इलावाजी इंडिया के जनूब मगरब में वाक़या मालाबार के लोगों में ये बात मशहूर है कि मालाबार के एक बादशाह चक्रवर्ती फार्मस ने चांद के 2 टुकड़े होने का मंजर अपनी आंखों से देखा था। उसने सोचा कि जरूर जमीन पर कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके नतीजे में ये वाक़या रूनुमा हुआ है। चुनाचा उसने इस वाक़े की तहकीक के लिए अपने कारिंदे दौड़ाए तो उसे खबर मिली कि ये मौजज़ा मक्का में किसी नबी के हाथों रूनुमा हुआ है और उस नबी की आमद की पेशन गोई अरब में पहले से ही पाई जाती थी। चुनाचा उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का प्रोग्राम बनाया और अपने बेटे को अपना कायम मकाम बनाकर अरब की तरफ सफर पर रवाना हुआ। वहां उसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी और मुशर्रफ बाइस्लाम हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक जब वो वापसी पर गामजन हुआ तो यमन के जफर साहिल पर उसने वफात पाई। यमन में अब भी उसका मकबरा मौजूद है जिसको हिंदुस्तानी राजा का मकबरा कहा जाता है और लोग उसको देखने के लिए वहां का सफर भी करते हैं। इसी मौजज़े के रूनुमा होने की वजह से और राजा के मुसलमान होने के सबब मालाबार के लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। इस तरह इंडिया में सबसे पहले इसी इलाके के लोग मुसलमान हुए। बाद अज़ा उन्होंने अरबों के साथ अपनी तिजारत को बढ़ाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से कबल अरब के लोग इसी इलाके के साहिलों से गुजरकर तिजारत की गर्ज से चीन जाते थे। ये तमाम वाक़या और मज़ीद तफसीलात लंदन में वाक़या इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी के पुराने मखतूतों में मिलता है जिसका हवाला नंबर 152, 173 और 2807 है। इस वाक़े का जिक्र मोहम्मद हमीदुल्लाह ने अपनी किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किया था। नासा की यह तस्वीर चांद पर पाई जाने वाली कई दरारों में से एक दरार की है। हम बसूख से तो ये नहीं कह सकते कि ये वही दरार है जो कि मौजज़ा रूनुमा होने की बिना पर वजूद में आई थी, मगर हमारा ईमान है कि मौजज़ा के बाद चांद की कुछ ऐसी ही सूरत हाल हुई होगी। बहरहाल साइंसदानों के बयानात से ये बात साबित हो जाती है कि कुरान करीम ने जिस वाक़े का जिक्र आज से 1400 साल पहले किया था वो बिल्कुल बरहक है। नाजरीन, ये ना सिर्फ कुरान मजीद की सच्चाई की एक अजीम शान दलील है बल्कि ये हमारे प्यारे नबी इमामुल अंबिया की रिसालत की लारेब गवाही भी है। अल्लाह ताला हमारे ईमान को अकमल व कामिल करे और हमें कुरान और हदीस के मुताबिक अपने अमलों को संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।